Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So as you know that we are into the Zero to Hero series, and in today's video we're going to be starting a new module in UiPath Academy. We are covering the ADE and ADP certifications right now. We are going to be starting the new chapter or a new module called Data Manipulation with Data Tables in the Studio. Let's get started guys. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं एंड अभी का जो चैप्टर है इट विल बी इंट्रोडक्शन टू डेटा टेबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनके द्वारा हम लोग डेटा टेबल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, व्हाट इज अ डेटा टेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेटा टेबल एंड वर्कशीट, विल बी सीइंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर इन दिस video. Stay tuned guys, it will be very fun and interactive video over there. Let's get started. ठीक है, so according to UiPath Academy इसमें लिखा है what is a data table variable, difference between a worksheet and a data table, list the most common activities and methods to create data tables in the studio. So guys, according to UiPath, the data table is a type, मैं आपको करके दिखाऊंगा in studio, don't worry. Data table is the type of variable that can store data as a simple spreadsheet with rows and columns. It will be like a table. Simple table which has data is called data table. Okay. You can identify each piece of data based on its unique column and row coordinates. We can think of it as a memory representation of an Excel worksheet. It will be looking just like an Excel worksheet. Okay. But the index of the data table will be starting from 0. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है in data table variables, individual cells can be identified using the column name and column index and the row index. Both indexes starting from 0. ठीक है, तो कॉलम नेम या कॉलम इंडेक्स से हम हाईलाइट कर सकते हैं या रो इंडेक्सेस को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो वी विल बी यूजिंग data table in a plethora of applications in UiPath. Please guys listen to it very carefully. It's very important chapter. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास डिफरेंस क्या है. पहले हम इसका पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा, अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे. ठीक है, what is the difference between a worksheet and a data table? So a data table is a memory representation of a single database. It has a collection of rows and tables, but it's a type of relational database management system. It is type of RDB में stable होंगे. जैसे अगर आपने किसी ने, अगर कोई यहाँ पे SQL से वाकिफ है, SQL किसको आती है, SQL किसी को आती है, PostgreSQL किसी को आती है, उसको पता है टेबल क्या होता है, डेटाबेस टेबल क्या होता है, कि व्हाट इज अ डेटाबेस टेबल होगी. ठीक है, एंड वही जहाँ पे हम देख लेंगे कि भाई आपका जो डेटा, जो ये आपका क्या है, ये आपका वर्कशीट है प्रॉपर. ठीक है, सॉरी, ये आपका डेटा टेबल है. दिस इज योर नॉर्मल वर्कशीट, आई वाज रॉन्ग, दिस इज योर नॉर्मल वर्कशीट. Excel worksheet is a visual representation of a data with different visualization options and extensive graphical user interface over there. कहाँ पे हम लोग डेटा टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या है, विल बी सीइंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी ओवर हेयर इन दिस वीडियो. ठीक है, जो डेटा टेबल को क्रिएट कर दिया, इसमें डेटा टेबल यूज होता है, विल बी यूजिंग ईच एंड एक्टिविटी ओवर हेयर. सो द फर्स्ट पार्ट विल बी द बिल्ड डेटा टेबल एक्टिविटी. हम लोग जाएंगे यूआईपाथ में, विल बी क्रिएटिंग अ प्रोसेस. लेट्स से चैप्टर 77 77. ठीक है, एंड वी विल सेइंग data step. Got it? So create. So guys, the first activity here will be the build data table activity. It will be just creating a type of a schema. इसमें हम schema बना सकते हैं. ये जनरली इस एक्टिविटी को हम स्कीमा बनाने के लिए यूज करते हैं. स्कीमा मीन उसका स्ट्रक्चर, डेटा टेबल का स्ट्रक्चर, क्या कॉलम्स है, किस टाइप के कॉलम्स है, किस टाइप में, मतलब कौन सा डेटा टाइप वेरिएबल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, क्या है. वी कैन ऑल्सो इंक्लूड सम वैल्यूज ओवर देयर. ठीक है, राइट. तो ये मेरा मेन सीक्वेंस है. एंड
यहाँ पे आई विल बी यूजिंग build डेटा टेबल एक्टिविटी ओवर देयर। ठीक है, ये मेरी build डेटा टेबल एक्टिविटी है। कोई अगर आपसे पूछे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज बताओ क्या है, तो आप देख सकते हो एक प्राइवेट है एंड एक डेटा टेबल, इट विल बी क्रिएटिंग ए डेटा टेबल ओवर दिस। हम पहले अपना आउटपुट डेटा टेबल यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल के dt, फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिस पाथ, इनपुट, एंटर। वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल। ठीक है, ऑटोमेटिक डेटा टेबल वेरिएबल है यहाँ पे कि हमने उसके आउटपुट पे बनाया है। एंड जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे एक विजार्ड खुल चुका है यहाँ पे। ऐसे करेंगे, वी हैव अ विजार्ड ओवर है, इसमें कॉलम्स दिए हुए हैं, टेक्स्ट है यहाँ पे, कुछ वन दे रखा है इन्होंने, तो हम इसको पूरा डिलीट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, कॉलम नेम, पहले से id, id, ठीक है, id विल बी ऑफ टाइप इंटीजर, सॉरी टाइप इंटीजर। ठीक है, राइट, डेटा टाइप इज इंटीजर, अलाउ नल मीन्स यहाँ पे नल वैल्यू एक्सेप्टेड है कि नहीं है वो देखने के लिए। ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अपने आप उसका कॉलम का जो इंडेक्स है अपने आप यहाँ पे क्या है बढ़ता रहेगा। ऑटो इंक्रीमेंट फीचर भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। अगर डिफॉल्ट वैल्यू आपको देनी है तो आप ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं करो। जैसे अगर आईडी है 1 2 3 4 तो ऑटो इंक्रीमेंट करके वो अपने आप बन जाएगा। यूनिक मीन्स अगर ये आपका क्या है, यूनिक होना चाहिए। अगर ये इंडिकेट्स वेदर द वैल्यूज इन ईच रो ऑफ द कॉलम मस्ट बी यूनिक, अगर ये यूनिक है तो हम ये टिक करेंगे। ठीक है, मैक्स लेंथ मतलब इसकी लेंथ भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कितनी लेंथ यहाँ पे है। indicates whether the column automatically increments the value of the column for new rows added to the table। मतलब इस वैल्यू की जो कॉलम है, सॉरी इस कॉलम की जो वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होंगी कि नहीं होंगे जब भी हम न्यू रोज ऐड करेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, मैंने आईडी यहाँ पे डाल दी, इसका int32 आपका डेटा टाइप है, प्लस आई से नेम, ऑब्वियसली नेम विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, से खाली नेम और ये रखते हैं दो हमारे यहाँ पे डेटा टेबल के वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अब अगर मैं इसे ओके यहाँ पे सेव कर दूंगा तो मेरा डेटा टेबल का स्कीमा बन गया। मीन्स क्या है, मैंने डेटा टेबल बना लिया है अपना विद 2 कॉलम्स आईडी एंड नेम। अगर मुझे उसके अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू भी फीड करनी है तो मैं डाल सकता हूँ 1 टैब एल से जे आई प्लस एंटर, यहाँ पे क्लिक करूंगा 2 एल से रोहित, 3 3 एल से ए ए के ए एस एच आकाश, राइट। Like this we have just created a 3 rows over there, got it। तो 3 रो मैंने बना ली है डेटा टेबल की। तो ये एक्टिविटी क्या करती है, इट विल बी क्रिएटिंग अ स्कीमा। देखिए मैंने कहा था ना स्कीमा बनाएगा यहाँ पर डेटा टेबल। by using this activity you can choose the number of columns, column name, the data type of each section. Moreover you configure each column with specific options like null values, unique values, auto increment for numbers, default value and maximum length for strings। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्टिविटी को क्लब करूंगा यहाँ पे, I'll be clubbing the activity with my tried and tested right range verb activity। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट डॉट xlsx, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले से बता रखा है। इट विल बी क्रिएटिंग द, sorry, it will be writing the data in the excel sheet from scratch। ठीक है, dt input यहाँ पे है and मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा राइटिंग और ऐड हेडर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डेटा टेबल इसमें प्रिंट होके अपना आ जाएगा। लेट्स ट्राई दिस वर्क फ्लो नाउ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इज रनिंग एंड इट हैज रन द वर्कफ्लो सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ हमारे पास आउटपुट डॉट एक्सएलएस फाइल आ चुकी है एंड इफ आई सी हियर, सो आप देख सकते हैं दैट
यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 आईडी 1 2 3, नेम इज ओवर दे 1 2 3, ये मेरा डेटा टेबल है। ठीक है, अगर मैं हेडर को हटा दूं ऑटोमेटिकली मेरे पास हेडर नहीं लेगा। अगर मैं हेडर को हटा दूं तो ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2, हेडर के साथ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना पार्ट, ये मैंने क्या किया विद द हेल्प ऑफ बिल्ड डेटा टेबल। ठीक है, ना क्विकली सी द रीड रेंज एक्टिविटी, और आपकी जो रीड रेंज एक्टिविटी है इट विल बी आल्सो एक्सपेक्टिंग अ व्हाट, अ डेटा टेबल वेरिएबल। बट ये आपका क्या है, किसी मॉडर्न एक्टिविटीज के यूज अंदर होगी, या तो किसी क्लासिक के लिए यूज होगी, बट इनसाइड एन स्कोप। या तो इसको आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशन स्कोप के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रीड रेंज। ठीक है, ये मेरी रीड रेंज है, ये रीड रेंज क्लासिक है, ये वाली। तो इसके अंदर क्या है, आपको अगर यूज करना है तो आप देख सकते हो इट विल बी इनसाइड ऑफ एप्लीकेशन, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप और एप्लीकेशन कार्ड। ठीक है, नाउ किसी मुझे किसी वर्कबुक को अगर रीड करना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू यूज एन एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप ओवर देयर। ठीक है, यहाँ मैं डालूंगा ये वर्कबुक का पाथ दूंगा, तो जो मेरा वर्कबुक का पाथ होगा गाइस इट विल बी व्हाट, इट विल बी दिस पाथ, इट विल बी दिस आउटपुट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपनी शीट को इनकैप्सुलेट कर सकता हूँ। ये आपने देखा एरर यहाँ पे चले गया। अब जो रीड रेंज होगा वो मैं जो भी मेरा डेटा टेबल आएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। ठीक है, ये रीड रेंज हो गया है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ऐड हेडर्स हैं, प्रिजर्व फॉर्मेट है, मीन्स इट विल बी जो भी आपका फॉर्मेट है वहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है सेल के अंदर, चाहे करेंसी है चाहे डेट है, इट विल बी लाइक दैट ओनली। ठीक है, बट अगर आप बल्क में रीड करो डेटा तो इट विल बी what it will be creating a performance issue with your bot, स्लो चलेगा आपका बॉट। ठीक है, यूज फिल्टर मीन्स जो भी आपके वर्कबुक के फिल्टर हैं पहले से लगे हुए हैं तो इट विल बी यूजिंग दैट एज वेल ओवर देयर। ठीक है, ये आप कर सकते हो। बाकी एक्टिविटी आपको पता है गाइस, जो एक्टिविटी यहाँ पे लिखी है, एक है आपकी रीड रेंज वर्कबुक एक्टिविटी। So this activity won't be accepting any scope, it will be directly expecting a file। इसको मैं यहाँ से दे सकता हूँ फाइल, आपकी मेरी फाइल हो गई है। यहाँ पे डाल दूंगा आपका शीट नेम शीट 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा टेबल दे दूँगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी गोइंग ओवर देयर। रीड CSV एक्टिविटी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सो व्हाट, यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे एक्टिविटी, अगर मुझे मेरी CSV को क्या करना है, रीड करना है, so there is a different activity for comma separated value activities, read from read CSV। so it will be what, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइल ये लेगा, रीड कौन सी फाइल से है, आउटपुट किस डेटा टेबल में बनाना है, आउटपुट हेडर है कि नहीं है उसके अंदर, और डिलीमीटर क्या है यहाँ पे, यू वांट सम मतलब टैब है, कॉमा है, सेमीकोलन है, कैरेट है, पाइप है, तो व्हाट इज द डिलीमीटर ओवर देयर, जनरली इट्स अ कॉमा ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनकोडिंग पूछ रहा है, किस टाइप की एनकोडिंग है, UTF-8 है क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है। इग्नोर कोड में अगर कोई कोड्स हैं तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, वो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज आउटपुट इसका सेम को डेटा टेबल के अंदर प्रीटी इजी। टेबल एक्सट्रैक्शन गाइस, टेबल एक्सट्रैक्शन के अंदर ये आपका मॉडर्न का पार्ट है, टेबल एक्सट्रैक्शन राइट। इट विल बी व्हाट, जैसे अगर किसी साइट है फॉर एग्जाम्पल, उससे आपको डेटा क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, डिलीट करके फिर देखो। अच्छा, टेबल एक्सट्रैक्शन इज द विजार्ड ओवर देयर, सॉरी इट्स नॉट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी इज एक्सट्रैक्ट टेबल डेटा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आपका टेबल डेटा एक्टिविटी है पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, टेबल एक्सट्रैक्शन में क्लिक करूंगा तो अगर कोई इसको यहाँ पे टेबल मिल रही है, if it found a table over here, it will be extracting it automatically with, हमें उसके रोज एक दो बार हाईलाइट करने हैं, and it found a pattern, it will automatically select all the data and it can even select the data from multiple pages। Got it? ठीक है, ये हो गया आपका। एंड डेटा स्क्रैपिंग एक्शन मीन्स
To use this functionality, you must switch to Classic Experience to Studio to enable disable. आपको पता है कैसे करना है, but I don't think अब ये चलेगा क्योंकि modern classic में switch नहीं कर पाते. It's only activities which we can switch. This functionality bypass to enable text extracted from your browser application document to a data table. It was a classic application scope overview. जनरेट डेटा टेबल फ्रॉम टेक्स्ट एडिटर. ये बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं इसमें बताया तो क्या है. पहले इसको हम पढ़ लेते हैं. यूएपा के डॉक्यूमेंटेशन. कैन बी यूज्ड टू क्रिएट a data table from a structured text by letting the user indicate the row and column separators. देखते हैं. तो we have to use a generate data table from text activity over there. अब इनपुट क्या है? डेटा टेबल मेरा सेव होगा आपका डेटा टेबल के तौर पे. इनपुट मैंने यहाँ डेटा टेबल बना दिया है. ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक एडवांस एडिटर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ स्ट्रिंग. यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट. मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसका क्या सोर्स है. मैं टेक्स्ट से मैं डेटा टेबल बना रहा हूँ. आप समझ रहे हो? टेक्स्ट से मैं क्या कर रहा हूँ? डेटा टेबल बना रहा हूँ. अब मैं यहाँ पे अगर डाल दूंगा आईडी नेम. ठीक है. फिर मैं डाल दूंगा 1J समथिंग लाइक दैट. तो अब लेट्स सी कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो मैं इस आउटपुट को डिलीट कर रहा हूँ एंड आई विल ट्राई टू राइट अ न्यू आउटपुट ओवर हियर. जब मैं उसको नई शीट बना सकता था. इट्स अप टू यू. आई जस्ट वांट अ न्यू आउटपुट. आउटपुट के नाम से भी दे सकता हूँ दूसरे उससे. वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ वर्कबुक्स ओवर द. Let's see. Debug it. I don't know, guys. Sometimes it takes a lot of time. तो गाइस ये चल तो गया था लेकिन इसके अंदर क्या हुआ. आउटपुट कुछ इस प्रकार का है. मैं आपको दिखा देता हूँ. तो जो आउटपुट हमारे पास आया था वो ये आया था. ये क्यों आया था? बिकॉज हमें इसको पहले प्रीव्यू में चला के देखना पड़ता है. हाउ वी कैन डू इट. ऑप्शंस के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे. तो दिस इज अ टाइप ऑफ बिल्डर आप कह सकते हो. ठीक है. बिल्डर है. ऑटो डिटेक्ट कॉलम टाइप्स मतलब किस टाइप का कॉलम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा. यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर्स. यस नीडेड. और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रीव्यू पे जाके तो ये इस टाइप का आपको प्रीव्यू देगा. लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉलम फॉर्मेट कस्टम फिक्स विड्थ कॉलम. अगर CSV है कस्टम तो कस्टम पे जाऊंगा. यहाँ पे जो मेरे कॉलम सेपरेटर है मैं उसको सेमी कॉलम दे सकूंगा. सेमी कॉलम यूज करना ज़्यादा ईजी लगता है. इनको विद ID नहीं. ठीक है. अब मैं अगर प्रीव्यू करता हूँ अब मेरे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आंसर आ रहा है. अभी भी नहीं आ रहा है. यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया था. इससे प्रीव्यू. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ. इसने क्या किया ऑटो डिटेक्ट कॉलम टाइप्स. मैंने कुछ अपने स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से एक डेटा टेबल बनाया है. दैट इज कॉल्ड द जनरेट डेटा टेबल फ्रॉम टेक्स्ट एक्टिविटी. ठीक है. आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा इतना. वेरी इजी एंड इंट्यूटिव है. फन है. अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे डिलीट करके. वी हैव डन इट. आईडी नेम पीछे ओके नहीं हुआ है. कॉपी इट लाइक we need to copy it like this. अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो जो मेरा डेटा टेबल आएगा इट विल बी इन प्रॉपर व्हाट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ओवर देयर. ठीक है. प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आएगा मेरा डेटा. लेट्स सी because we already seen it in the output in the test window. Just refresh it.
and see here you are. ID is one, name is zero. So ID column one and name is zero. From which activity? From generate data table from text. So guys, इस activity या इस उसके लिए इतना ही. We'll just be doing a question over there. Very simple question. What activity creates a data table according to a specified schema? मतलब देखिए यहाँ पे क्रिएट्स अ डेटा टेबल अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक. अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कुछ भी टिक करके आ जाओगे. लेकिन क्या लिखा है, अगर स्पेसिफाइड स्कीमा से अगर मैं कहूँगा यहाँ पे, तो मेरा जो है क्या है, आपका बिल्ड डेटा टेबल है. इट विल बी क्रिएटिंग अ डेटा टेबल अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड स्कीमा. ठीक है. टेक्स्ट आपका स्कीमा नहीं, इट इज जस्ट स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट. अगर बोले विच एक्टिविटी क्रिएट्स अ डेटा टेबल अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, तब हम इसमें क्लिक करेंगे. लेकिन अगर बोलेगा स्पेसिफाइड स्कीमा है, we'll be always clicking on build data table. We'll be also accessing our options, but definitely we'll be clicking on build data table if it's asking this specific answer question number 3. ठीक है. With this we have completed the first chapter. मैंने आपको एक एक एक्टिविटी यहाँ पे करके दिखाई है. ठीक है. ये बोल रहा है कि जैसा आपने नहीं करके दिखाई है, we have done it. In the next part we'll be seeing and we'll be doing some. इन दोनों को क्लब करेंगे हम लोग साथ में. तो we'll be also saying that हम लोग से sort कैसे कर सकते हैं डेटा टेबल को. we will be combining two data tables, you know, using. And at the end of the video, in the next video, there is also a very easy, not easy for starters, but जिसको पता है, मैं वो समझ गया हूँ कि मैं क्या कहने वाला हूँ अभी. ठीक है. तो we'll be also, you know, side by side, letting you know about हल्का फुल्का लिंक यू, नॉट टू डेप्थ में, क्योंकि उसके लिए मेरे पास सीरीज प्रॉपर प्रिपेयर्ड है. एंड मैंने आज एक लिंक्डइन में पोस्ट किया था, एक पोल किया था कि क्या मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस डालने चाहिए सीरीज, बिकॉज आई हैव अ बंच ऑफ देम रेडी विद मी. राइट. सो पोल अभी तक अच्छा चल रहा है, तो विल बी सीइंग द पोल रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द वीक. आई डोंट थिंक सो उस पर कोई नेगेटिव आंसर्स आएंगे, तो हर किसी को अच्छा खासा बंच चाहिए इंटरव्यू का. राइट. विल बी कैटेगराइजिंग इनटू सिंपल, मीडियम एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, कैन बी आस्क्ड, has been asked in the examination live scenario. Okay, scenario based question, everything I'll be sharing it with you guys. Right. So stay tuned guys. काफी कुछ मैंने सोच कर रखा है आपको लेके on my channel. Stay tuned, keep sharing, keep supporting. Happy automation to you guys, and as always, keep learning.